चलिए, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स फॉर द प्रीलिम्स में यहाँ पर हम बर्ड स्पेसिस काउंट इन द डिपॉर बेल में हम बात करते हैं। टैग्स इसके आप देखें तो कोई फैक्ट्स है फॉर प्रीलिम्स के लिए, जीएस पेपर थर्ड और कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन में पूछा जा सकता है। तो वाई न्यूज़ में हम देखते हैं तो रिसेंटली जो गुवाहाटी वाइल्ड लाइफ डिवीजन है किसका, आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, उन्होंने कंडक्ट क्या करा, सेकेंड बर्ड स्पेसिस काउंट एक्सरसाइज कंडक्ट करी है किस फरवरी के बाद, कहाँ पर, डिपोर बेल वेटलैंड में, विच इज़ द ओनली रामसर साइट है आसाम में। ठीक है, तो कोई आपसे पूछ ले अगर आसाम में जो रामसर साइट का नाम पूछे तो आपको डिपोर बेल वेटलैंड ध्यान में रखना है। ठीक है, although 26747 bird belonging to 96 species were recorded during a bird count at the Dipor Bell wetland, there were 10,289 individuals across 66 species in 2022. The bird count revealed greater species diversity and an increase in the total number of species. अब बात करते हैं कि भैया व्हाट इज़ डिपॉर बेल क्या है। About it is one of the largest freshwater lakes in Assam and an important bird area by the BirdLife International. Deepor Bell has designated as a Ramsar site कब बताई गई थी, कब, नवंबर 2002 पर। It is located towards the southwest of Guwahati city, Assam and is the east-wide water channel of river Brahmaputra. The lake expanded up to 30 km in summer and reduces to about 10 square kilometer in the winter. The Assam Forest Department managed the 4.1 square kilometer Dipor Bell Wildlife Sanctuary in the central part of the greater wetland named Dipor Bell. Importance में हम बात कर लेते हैं तो it constitute a unique habitat for the aquatic flora and avian fauna. It has both biological and environmental importance besides being the only major storm water storage basin for Guwahati city. It provides a means of a livelihood for a number of local families. In 2021, 6 young girls from the fishing community from Assam have developed a biodegradable and compostable yoga mat called Morhan Yoga Mat. Deepor Bell adjoining the Rani Reserve Forest, from where herds of elephants come periodically to forage in the wetland. कंसर्न्स में हम जब बात करते हैं तो डिपोर बेल हैज़ ऑल्सो सफर्ड कंटेमिनेशंस बिकॉज ऑफ द गार्बेज डम्प ऑन इट्स एजेस एट पश्चिम बोरागांव. इट्स वाटर हैज़ बिकम टॉक्सिक एंड it has lost many of its aquatic plants that elephants would feed on. It has for decades been treated by a railway track said to be doubled and electrified on its southern rim, a garbage dump and encroachment from the human habitations and commercial units. What are the other protected एरियाज देख लेते हैं आसाम में कौन कौन है। तो आसाम में आपको 7 नेशनल पार्क्स दिखने वाले हैं और 17 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दिखने वाली हैं। रायमोना, मानस, ओरंग, नामेरी, काजीरंगा, डिपोर बेल, देब्रू, सैकोवा और दिहिंग पतकाई। चलो यहाँ पर देखते हैं क्या है। Welcome to the latest update program. The topic of discussion is bird species count up in Deepor Beel. Recently, a bird count exercise was conducted by the Guwahati Wildlife Division of the Assam Forest Department. This was the second such exercise after February 2022. The participants counted the birds using the visual encounter survey methodology for bird count. A total of 37 individuals participated in the bird count exercise, including Forest Department officials, bird experts, students, and representatives from NGOs. The bird count in the state's sole Ramsar site revealed greater species diversity and an increase in the total number of species. The Forest Division found a head count of over 26,000 birds of 97 different species. The data on bird species and numbers obtained through such monitoring can greatly help in conservation planning in the long run. Deepor Beel is considered one of the large and important riverine wetlands in the Brahmaputra Valley of Lower Assam, India. It is an open lake basin connected with a set of inflow and outflow channels.
It has both biological and environmental importance, besides being the only major storm water storage basin for Guwahati city. It is considered one of the staging sites for migratory birds in India and some of the large congregations of aquatic birds in Assam during winter. It has been selected as one of the important bird area, that is IBA sites, by BirdLife International. It has also been designated as a Ramsar site in November 2002. अब देखो हमें PYQs देख लेते हैं। तो कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स में क्या 2013 का है। नेशनल पार्क रिवर फ्लोइंग थ्रू द पार्क, एक तरफ क्या है कॉर्बेट नेशनल पार्क दिया हुआ है, फिर गंगा है, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, कावेरी। तो विच ऑफ द अबव पेयर्स इज और आर करेक्टली मैच्ड। आंसर इसका डी दिया हुआ है, मतलब नन। तो क्या लिखा हुआ है पढ़ के देखो भाई इसको। आप विदेशी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसके लिए यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक नई न्यूज दी है। इससे जुड़ा हुआ अपडेट दिया है। यूजीसी फॉरेन यूनिवर्सिटीज को भारत में कैंपस बनाने की अनुमति दे रहा है। हर साल लाखों भारतीय स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए विदेशी संस्थानों में स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ एक डिस्कशन करने वाले हैं, जहां पे हम लोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की गाइडलाइंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं।
हाल ही में यूजीसी की मीटिंग के बाद कुछ ड्राफ्ट गाइडलाइंस निकली है, जहां एक स्कीम के बारे में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने बताया, प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस स्कीम। तो हम लोग इस डिस्कशन में प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यहां पे आप देख सकते हो खबर में, वार्सिटीज यानी कि यूनिवर्सिटीज आर नाउ गोइंग टू हायर एक्सपर्ट्स एज 10% फैकल्टी विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ डिग्री और विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ मैंडेटरी पेपर पब्लिकेशन। इसी के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस की जरूरत क्यों पड़ रही है, कौन प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस बन सकते हैं, कितने समय के लिए बन सकते हैं और इसका परिणाम क्या हो सकता है। इस डिस्कशन के अंत में हम लोग एनालाइज करेंगे, विल इट बी अ स्कीम व्हिच वुड बी फीजिबल, इसके ऊपर हमारी चर्चा चलेगी। डिस्कशन शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल आपके लिए, डू यू थिंक मैंडेटरी पीएचडी क्वालिफिकेशन शुड बी अ कंपल्सरी रिक्वायरमेंट टू टीच इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज? अगर जवाब हाँ होगा, डिस्कस द चैलेंजेस दैट कम विद सच रिजिड सिलेक्शन नॉर्म्स, इसके ऊपर भी आपको डिस्कशन करना है। इस सवाल के प्रति आपको काफी अच्छा फॉरम मिलेगा, काफी अच्छा कंटेंट मिलेगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। टू गेट टू नो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन, स्टे विद मी ऑन स्टडी IQ टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है 31 अगस्त तक एडमिशन हमारा अभी भी ओपन है फॉर फाउंडेशन बैच। ऑलरेडी क्लासेस शुरू हो चुकी है 22 अगस्त से। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यू वुड मिस आउट ऑन सम क्लासेस, तो रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगे ऑन द ऐप इटसेल्फ। साथ ही साथ इस कोर्स की वैलिडिटी है 24 महीने, यानी कि अगर आप 2024 सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये काफी फायदेमंद कोर्स रहेगा आपके लिए। स्टडी IQ का उद्देश्य यही होता है कि क्वालिटी एजुकेशन आप तक ले आए एट अफोर्डेबल प्राइसेस। इस कोर्स में आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, ग्रुप मेंटरशिप मिलेगी, 900 आवर्स से भी ज्यादा आपकी लाइव क्लासेस कंटिन्यूअसली चलेंगी। हर मॉड्यूल के बाद आपकी प्रीलिम्स टेस्ट होगी, हर मॉड्यूल के बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। इसी कोर्स में आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलेगी। ये सारी चीज आपको मिलेगी केवल 18,999 में। और लो कंपनी प्राइस 25,000 के आसपास है, लेकिन अगर आप कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइव, यू विल गेट द एंटायर कोर्स फॉर दिस प्राइस। डू अवेल दिस टिल 31 अगस्त। ध्यान रखना आपको, लिमिटेड सीट्स हैं, खत्म हो रहे हैं सीट्स, तो जल्द से जल्द एनरोल कीजिए। चलिए चर्चा में वापस चलते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, हाल ही में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अप्रूव की है ड्राफ्ट गाइडलाइंस। तो आपको ये ध्यान रखना है, मीटिंग के बाद ड्राफ्ट गाइडलाइंस आई है, दीज आर नॉट फाइनल गाइडलाइंस। इनफैक्ट ये जो गाइडलाइंस है, दे वुड बी अप फॉर फीडबैक फ्रॉम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। लेकिन यूजीसी ने यहाँ पे एक स्कीम की बात की है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस स्कीम। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ये एग्जैक्टली स्कीम है क्या। लेकिन उससे पहले व्हाट एग्जैक्टली इज दिस यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए यूजीसी, आपको ध्यान रखना है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से रिमेंबर इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द यूजीसी एक्ट 1956। 1953 में इसको सेटअप किया गया था। उस समय के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना आजाद, राइट, उन्होंने यूजीसी को इनॉग्रेट किया था। यूजीसी का काम क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इट इज रिस्पांसिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग, डिटरमाइनिंग एंड मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन। यानी कि हमारे हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज हो गई, आपकी कॉलेजेस हो गई, ऑटोनोमस कॉलेजेस हो गई, उनकी रिकॉग्निशन, उनकी एक्रेडिटेशन, साथ ही साथ उनकी फंड्स को भी डिस्पर्स करते हैं। यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को फंड्स भी डिस्पर्स यूजीसी ही करता है। अब यूजीसी के प्रीकर्सर कुछ बॉडीज है। 1944 में सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी ऑफ एजुकेशन बनी थी। अब ये जब बनी थी पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए, आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिश का अभी भी यहाँ पे राज चल रहा था इंडिया में। उस समय पे सार्जेंट कमिटी, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन ऑन पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट, इसको कहते हैं सार्जेंट रिपोर्ट, यानी कि सार्जेंट कमिटी की रिपोर्ट की रिकमेंडेशन की बिना पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिटी बनी। ध्यान रखना आपको, इट वाज नॉट कमीशन, इट वाज यूजीसी, जहां पे 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का जिम्मा इस कमिटी को दिया गया था। अलीगढ़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जिम्मा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिटी के पास दिया गया था। इंडिपेंडेंस के बाद 1948 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एस राधाकृष्णन। और इवेंचुअली ये सारी चीजें मर्ज हुई और 1953 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनी, जहां पे इस कमीशन का जिम्मा यह है कि जो भी यूनिवर्सिटीज रहती हैं, जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होती हैं, उनकी एक्रेडिटेशन, उनकी रिकॉग्निशन और उनको फंड्स, बेसिकली उनकी जो वर्किंग है, उनकी जो रेगुलेशन है, इट कम्स अंडर यूजीसी। और बड़ी ही जल्दी आने वाले समय में यूजीसी भी ट्रांसफॉर्म होने वाला है। कुछ दिनों बाद या फिर कुछ सालों बाद मैं कहूंगा यूजीसी भी नहीं रहेगी। यूजीसी के बदले हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनने वाली है। इसके लिए ऑलरेडी एक ड्राफ्ट बिल बन रहा है सरकार की तरफ से। जैसे ही ये ड्राफ्ट बिल पास होगा पार्लियामेंट में, तो आपको हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनेगा। यूजीसी विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू HECI, बट एज ऑफ नाउ इट इज यूजीसी। और मैं आपको बताया कि यूजीसी ने अभी गाइडलाइंस निकाली है, उनकी 560th मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के बाद उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। अब ये प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस है क्या? इस नोटिफिकेशन की जब भी ये गाइडलाइंस जब भी नोटिफाई हो जाएंगी, तो उसके बाद यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हायर कर सकते हैं टीचिंग स्टाफ को, यानी कि प्रोफेसर्स को, विदाउट एनी, ध्यान रखिएगा, विदाउट एनी प्रीवियस एकेडमिक क्वालिफिकेशन और पब्लिकेशन। अभी फिलहाल अगर आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को अप्लाई करते हैं, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे। नाउ मिनिमम इज असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट सिस्टम, उसके बाद प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर आपके पास होते हैं, राइट। तो इस पोस्ट के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन हो जाएगी पीएचडी, पीडीएफ जो भी मांगेंगे। पीएचडी के साथ कई बार जो हाई एंड यूनिवर्सिटीज होती है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि पेपर पब्लिश होने चाहिए, 10 पेपर पब्लिकेशन, 15 पेपर पब्लिकेशन होने चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ पेपर पब्लिश भी होने चाहिए, कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अभी प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस स्कीम्स के अंदर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस क्या कर सकती है, वो हायर कर सकते हैं डायरेक्टली लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस, यानी कि किसी डिग्री की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। विदाउट एनी डिग्री, विदाउट पीएचडी, विदाउट पीडीएफ, यानी कि पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के बगैर भी, नंबर ऑफ पेपर पब्लिश की रिक्वायरमेंट के बगैर भी अभी लोग प्रोफेसर बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? देखिए, लोग जो भी बैकग्राउंड से हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में है तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, मीडिया में हो, साइंस में हो, सिविल सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, एंटरप्रेन्योरशिप, कहीं पे भी हो, वहां पे लोग अभी अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं कॉलेजेस को। ये जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस है, यहां पे बताया गया है कि एक्सपीरियंस कम से कम 15 साल का होना चाहिए, प्रेफरेबली एट सीनियर लेवल, राइट, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बनने के लिए। अगेन, कैसे सिलेक्शन होगी, इसके भी नॉर्म्स निकलेंगे यूजीसी से। लेकिन अभी कोई अगर किसी फील्ड में एक्सपर्ट है, समझ लीजिए इंजीनियरिंग फील्ड में एक्सपर्ट है और उनके पास एक्सपीरियंस है, विदाउट एनी इंजीनियरिंग डिग्री ऑल्सो, 15 साल का एक्सपीरियंस है इंजीनियरिंग फील्ड में, तो प्रोफेसर बन सकते हैं वो, एकेडमिक क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन
ये जो प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस रहेंगे, इनका जो स्ट्रेंथ रहेगा किसी भी सिंगल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, एट अ पॉइंट इट शुड नॉट एक्सीड 10%। यानी कि अगर समझ लीजिए 10 प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है, 10 में से केवल एक प्रोफेसर, 1% मींस 1 प्रोफेसर वुड बी द प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। दैट्स जस्ट एन एग्जांपल। यानी कि 10% से ज्यादा प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस नहीं होने चाहिए। रिक्वायरमेंट ये भी बताएगी प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस शुड पोजेस बेसिक स्किल्स एंड ड्यूटीज फॉर परफॉर्मिंग द रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द अदर प्रोफेसर्स, राइट। तो इसके ऊपर किस तरह के प्रोफेसर्स हायर किए जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल अब समझ लीजिए मेरा एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और मुझे कुछ प्रोफेसर्स की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि इंडिया में पीएचडी कैंडिडेट्स आपको मिलते नहीं है, राइट, या फिर आपके कॉलेज में कोई अप्लाई नहीं कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन नाउ हायर प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस। 3 तरह के प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस आप हायर कर सकते हो। एक विच आर फंडेड बाय इंडस्ट्रीज, स्पेसिफिक इंडस्ट्री हो, फॉर एग्जांपल अगर समझ लीजिए कोई आईटी फील्ड से चाहता है कि प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस हायर करे, से फॉर एग्जांपल अ पर्सन हु हैज एक्सपीरियंस ऑफ एथिकल हैकिंग फॉर 15 इयर्स, 15 साल का हैकिंग एक्सपीरियंस, एथिकल हैकिंग एक्सपीरियंस है, तो वो सिखाए स्टूडेंट्स को द नॉर्म्स ऑफ हैकिंग, कुछ इस तरह के एग्जांपल है। या फिर किसी भी फील्ड में, मशीनरी हो, आईटी हो, ऑटोमोबाइल हो, किसी भी इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री चाहती है कि किसी कॉलेज में स्पेसिफिकली जहां से वो हायर करते हैं स्टूडेंट्स को, बच्चों को, राइट, जो कॉलेज प्लेसमेंट होती है, कैंपस प्लेसमेंट होती है, अगर वो रिक्वायरमेंट कर दे कि हम कुछ प्रोफेसर्स को फंड करना चाहते हैं जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इंपार्ट करे स्टूडेंट। Hello everyone, welcome back to today's topic of the day. Today, we'll be discussing about the setting up of campuses of foreign universities in India under UGC Regulations 2023. Now, the Higher Education Regulator, University Grants Commission, UGC, released draft regulations to allow foreign universities to enter India. Public comments and feedbacks are invited until January 18th. Let's know a little bit about the background. The National Education Policy, NEP 2020, has envisioned that top universities in the world will be facilitated to operate in India to enable Indian students to obtain foreign qualifications at affordable cost and make India an attractive global study destination. In 2022, nearly 4.5 lakh Indian students went abroad for studies. This means a huge outflow of capital from India, and this also shows that there is a huge interest among Indian students to study in foreign universities. In this background, the University Grants Commission, UGC, under the UGC Act 1956, released the draft UGC Regulations 2023 for setting up and operations of campuses of foreign higher educational institutions in India. Let us understand the features of draft regulations. Talking about the coverage, these regulations shall regulate the entry and operations of foreign universities or institutions in India to conduct undergraduate, postgraduate, doctoral, postdoctoral, and other programs and award degrees, diplomas, and certificates in all disciplines. No foreign higher educational institutions shall set up campuses in India without the approval of UGC, and their permit will have to be renewed in every 9 years. For the eligibility, universities that are placed in the top 500, either in the overall or the subject-wise category, in global rankings such as QS World University Ranking, can apply to enter India. Universities that do not participate in such rankings must be reputed in their countries to be able to apply. About the admission and fee structure, the foreign universities will have full freedom to decide the fee structure and admission criteria for both Indian and overseas students. The government will have no say in this matter. They will not be expected to mandatorily follow reservation policies in admissions. Also, there will be a provision for need-based scholarships in all these universities. For the appointment of faculties, they will have the autonomy to recruit faculties and staff members from India and abroad. The programs offered under these regulations shall not be allowed in online and open and distance learning (ODL) mode. The foreign higher educational institutions shall have a mechanism to address students' grievances. However, the students may appeal to the Commission if the FHEI does not redress or resolve their grievances. Talking about the consequences of violation, the UGC shall impose a penalty or suspend the approval if its activities or academic programs are against the interest of India. Now, there are certain challenges as well. Technically, universities like Oxford, Cambridge, or Harvard can now open campuses in India, but it will ultimately depend on whether those universities find the Indian market attractive enough to invest in a branch campus in the country. Let's know why previous attempts to allow foreign university campuses in India failed. The coalition government that ran India for many years up to 2014 faced several pressures. The left parties, which have strong ideological and economic reservations against the entry of the foreign capital in higher education, had a much larger electoral presence in national politics during this period. Now that was a little bit about setting up of foreign universities in India. Let's take a practice question from the topic. Consider the following statements. Statement 1. The National Education Policy NEP 2020 has envisioned that top universities in the world will be facilitated to operate in India. Statement 2. Only those universities that are placed in the top 100, either in the overall or the subject-wise category, in global rankings such as QS, can apply to enter India. Now, which of the statements given above are correct? You may take a moment and give your answer in the comment section below.
Now the correct answer is A. That is, only statement 1 is correct. Statement 2 is incorrect, as only those universities that are placed in the top 500 can apply to enter India. I hope you liked the video and found the information useful. You may also check out our daily current affairs section on our website, and for more such videos, stay tuned to the Next IAS YouTube channel. भाई ये बार बार क्यों हो जाता है इधर ड्राफ्ट नॉमिनेशन? ये हमने चलो देख ही लिया है वहाँ से, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एक बार यार यूजीसी को भी यहाँ पे ना ये देखते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। बिल्कुल ट्रेन टिकट है सर। रात को लंबी रेस के लिए लॉन्ग टाइम। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं फेमा एक्ट के बारे में। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, Facebook/स्टडी कॉमर्स चैनल। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट 1999 के बारे में। तो इस एक्ट के बारे में पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है कि एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करना। ये क्या है? फॉरेन एक्सचेंज है। फॉरेन करेंसीज कैसे आ सकती हैं? जैसे एक्सपोर्ट किया जाए, इंपोर्ट किया जाए, इसके थ्रू कंट्रीज में फॉरेन करेंसीज आती हैं। यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है? ट्रेड के थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट फॉरेन एक्सचेंज की कंट्री में मैनेजमेंट के लिए इसको बनाया गया। फेमा एक्ट 1999 में बनाया गया था और ये रिप्लेस करता है एक पुराने एक्ट फॉरेन एक्सचेंज एंड रेगुलेशन एक्ट 1973। यानी कि फेरा एक्ट को रिप्लेस करके फेमा एक्ट लाया गया था। फेरा एक्ट क्या था? एक तरीके का कंट्रोल था फॉरेन एक्सचेंज पर। फेरा एक्ट 1973 में बनाया गया था और लिबरलाइजेशन के बाद जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन ट्रेड था, इसे लिबरल किया गया, काफी ईजी किया गया। लेकिन जो फेरा एक्ट था, ये काफी ज्यादा कंट्रोल और रेगुलेशन लगाता था फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन ट्रेड पे, जिसकी वजह से जो बिजनेसेस थे उसको काफी प्रॉब्लम्स उठानी पड़ती थी और ट्रेड काफी टफ था। इस कारण से फॉरेन एक्सचेंज एंड रेगुलेशन एक्ट को रिप्लेस किया गया फेमा एक्ट के द्वारा और फेमा एक्ट 1 जनवरी 2000 से काम करना शुरू किया। तो यहाँ पे फेरा को रिप्लेस करने का रीजन क्या था कि फेरा के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जिस तरीके के थे, जो मेजर्स वो यूज करता था, जो रूल्स थे वो ठीक नहीं थे, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड इजिली पॉसिबल नहीं था लिबरलाइजेशन के बाद से। तो जरूरी था कि कुछ ऐसे लिबरल रूल्स का यूज किया जाए जिससे ट्रेडिंग पॉसिबल हो सके वर्ल्ड इकोनॉमी से। इसलिए फॉरेन एक्सचेंज एंड रेगुलेशन एक्ट को हटाकर फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट लेकर आया गया। अब हम देख लेते हैं फेरा एक्ट में क्या क्या चीजें थी। तो फेरा एक्ट सितंबर 1973 को बनाया गया था। तो फेरा एक्ट बनाने का रीजन क्या था? फॉरेन पेमेंट्स को रेगुलेट करना, फॉरेन एक्सचेंज में जो डीलिंग्स की जा रही हैं उसको रेगुलेट करना और फॉरेन एक्सचेंज जो है इसका कंजर्वेशन करना। जिस टाइम फेरा एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था उस समय जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे हमारी कंट्री में, इंडिया में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो काफी कम थे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एक कंट्री को रखना जरूरी होता है क्योंकि जो भी पैसा RBI इशू करती है वो कुछ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रखकर ही किए जाते हैं। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की जरूरत होती है कंट्री को अपने लायबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए। जिस टाइम फेरा एक्ट बनाया गया था उस समय फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स थे वो काफी इंडिया में लो थे। इसी रीजन से इसे बनाया गया था ताकि जो ये रिजर्व्स लो है इनको सही किया जा सके और इसकी वजह से काफी टफ रूल्स और रेगुलेशंस लगाए गए। एक्सपर्ट्स इसे एक ड्रैकोनियन एक्ट कहते हैं। ड्रैकोनियन एक्ट का मतलब है कि अगर जो भी इस एक्ट में चीजें दी गई हैं, जो रूल्स दिए गए हैं, अगर वो ब्रेक होते हैं तो उसे एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। यानी एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर तोड़े जाते हैं तो आपको एज अ क्रिमिनल माना जाएगा, जिसके लिए सीधे सीधे आपको इंप्रिजनमेंट दे दिया जाता है। तो इसीलिए एक्सपर्ट्स इसे ड्रैकोनियन एक्ट कहते हैं, क्योंकि जो ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन है इंडियन इंडस्ट्रीज का वो काफी ज्यादा फेरा की वजह से रुक रहा था। रीजन क्या है? फेरा के रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर बहुत ज्यादा टफ है तो इसके कारण से जो डीलिंग्स है फॉरेन एक्सचेंज में वो नहीं हो सकती हैं, इन्वेस्टमेंट्स इजीली पॉसिबल नहीं था, ट्रेड इजीली पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी कोई भी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सकती। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड ये काफी इंपॉर्टेंस रखता है एक इंडस्ट्री की ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन में। तो फेरा के रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से ये चीजें काफी टफ हो रही थी। तो ये सारे कुछ रीजंस थी जिसकी वजह से फेरा एक्ट को हटा करके रिप्लेस करके 1999 में फेमा एक्ट को बनाया गया। चलिए अब हम फेमा के कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया है टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट। जो एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट काफी टफ था रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से, कंट्रोल की वजह से फेरा के, उसको फ्री करने के लिए, उसको बेटर करने का काम करता है फेमा। फेमा एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट को आसान करता है। दूसरा है टू प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस
ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। दूसरा है द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल इन इंडिया एंड टू रिमूव इम्बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो फॉरेन कैपिटल है इंडिया में इसका रेगुलेशन करना। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन पेमेंट्स, जो फॉरेन पेमेंट्स है उसको रेगुलेट करना और नॉन रेजिडेंट जो है उनकी बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलेट करना। थर्ड आपको यहाँ दिया है कि ये काफी ट्रांसपेरेंट लॉ है, क्योंकि कौन सी एरियाज में स्पेशल परमिशन लेने की जरूरत है आरबीआई से, ये सारी चीजें ये स्पेसिफाई करता है, तो काफी ट्रांसपेरेंट लॉ हम फेमा को कहेंगे। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट फेमा में क्या क्या मेन प्रोविजंस हैं। तो सबसे पहला है डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, सेक्शन 3 के अंतर्गत दिया गया है डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज में डील करने के लिए कुछ जनरल या स्पेशल परमिशंस की जरूरत पड़ती है आरबीआई से। आरबीआई एक रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करती है फेमा के थ्रू, यानी कि कोई भी परमिशंस लेने की जरूरत है तो वो आरबीआई से लेनी पड़ेगी किसी भी फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन करने से पहले। आरबीआई से जनरल या स्पेशल परमिशन लिए बिना कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं की जा सकती। सब ऐसे पर्सन को जो ऑथराइज पर्सन नहीं है उसको फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटी का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यहाँ ऑथराइज पर्सन का मतलब है कि ऐसा जिसे ऑथराइज किया हो आरबीआई ने कि इस पर्सन को या इस कंपनी को फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटीज को ट्रांसफर किया जा सकता है, वही पर्सन ऑथराइज पर्सन कहलाएगा जिसे आरबीआई ऑथराइज करती है। दूसरा, कोई भी पर्सन अगर आउटसाइड इंडिया है, रेजिडेंट है इंडिया के बाहर का, तो उसे कोई भी पेमेंट नहीं किया जा सकता। तीसरा है जो कोई अगर ऑथराइज पर्सन नहीं है इंडिया के बाहर का तो उससे पेमेंट भी नहीं लिया जा सकता। और चौथा है इंडिया के बाहर अगर एसेट से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसमें भी एंटर नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ डीलिंग्स है फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जिसके लिए स्पेशल या जनरल परमिशन आरबीआई से लेना जरूरी है। नेक्स्ट आपको दिया है होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये सेक्शन 4 में दिया हुआ है। इसके अनुसार अगर कोई बात एक्ट में स्पेशली प्रोवाइड नहीं की गई है तो अगर कोई इंडियन रेजिडेंट है तो वो इंडिया के बाहर अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है या फॉरेन एक्सचेंज है या फॉरेन सिक्योरिटी है तो उसे एक्वायर नहीं कर सकता, अपने पास नहीं रख सकता या ट्रांसफर नहीं कर सकता। थर्ड आपको दिया है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, ये है सेक्शन 5 में। जो सेल या ड्रॉल है ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, तो कोई भी पर्सन फॉरेन एक्सचेंज को सेल कर सकता है या ड्रॉ कर सकता है किसी ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा। करंट अकाउंट का मतलब है कि इकोनॉमी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांसफर से रिलेटेड शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शंस होते हैं वो करंट अकाउंट के थ्रू दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, ये सेक्शन 6 में दिया गया है। तो यहाँ पर भी फॉरेन एक्सचेंज अगर ऑथराइज पर्सन से सेल या ड्रॉ किया जा रहा है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में तो वो अलाउ है। अब अपनी लाइफ का 1 मिनट रिवाइंड करो और सोचो, जब मैंने ये सवाल पूछा किसी ने ये सोचा कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, मजा आएगा? एनीवन? सर? नहीं, सब रेस में लग गए। ऐसे पढ़ के फर्स्ट आ भी गए तो क्या फायदा? आप लोगों की नॉलेज बढ़ेगी? नहीं, सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा। अरे चाबुक के डर से तो सर्कस का शेर भी उछल के कुर्सी पर बैठना सीख जाता है, लेकिन ऐसे शेर को हम वेल ट्रेन्ड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं। 1968 में आई थी इंडिया की पहली एजुकेशन पॉलिसी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में, और 1986 में आई थी इंडिया की दूसरी एजुकेशन पॉलिसी राजीव गांधी गवर्नमेंट में, जिसे 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने मॉडिफाई किया था। और अब 34 साल बाद आई है इंडिया की न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट बिकॉज ऑन पेपर ये पॉलिसी एकदम परफेक्ट है। खैर इंप्लीमेंटेशन का तो ओनली टाइम कैन टेल। हे एवरीबॉडी, मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं फिनोलॉजी लीगल। आज की इस वीडियो में हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को एनालाइज करेंगे। देखिए, इंडिया में एजुकेशन की पर्सपेक्टिव में लास्ट ग्राउंड ब्रेकिंग चीज जो हुई थी वो थी राइट टू एजुकेशन। कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था आर्टिकल 21A, जिससे 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की गई थी। 6 से 14 साल के बच्चे, ये एज ग्रुप याद रखिएगा क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए ये एज ग्रुप इंपॉर्टेंट है। और इंडिया में कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है ये हमें इलेक्शन मैनिफेस्टो से पता चलता है। रिजर्वेशन, कोटा, एफडीआई, डिफेंस, इन सारी चीजों की बातें मैनिफेस्टो में की जाती है, पर एजुकेशन की बातें, क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए एजुकेशन इतना भारी टॉपिक नहीं है। पर ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, इसके पीछे कोई शेयर सडननेस ऑफ द मूव नहीं है। चलिए चलते हैं 2014 में। 2014 में बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में थी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी। 2015 में जब स्मृति ईरानी एचआरडी मिनिस्टर थी तब एक कमेटी बनाई गई जिसके चेयरमैन थे मिस्टर TSR सुब्रमण्यम। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 7 मई 2016 को। इस कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव था टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्रेडिबिलिटी ऑफ एजुकेशन और इम्प्लीमेंटेशन में जो भी गैप्स है उन्हें एड्रेस करना। अक्टूबर 2016 में मिनिस्ट्री ने इस ड्राफ्ट पॉलिसी को रिलीज करके इस पर सजेशंस मंगाए, पर इन रिकमेंडेशंस का कुछ हो ना सका। इसके बाद फॉर्मर इसरो चीफ डॉक्टर K. कस्तूरी रंगन की चेयरमैनशिप में एक और कमेटी बनाई गई जिसमें 9 मेंबर्स थे।
इस कमेटी ने 2019 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाया जो फाइनली पास हुई एज न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो अगर इस पूरी एजुकेशन पॉलिसी के 3 सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस की बात करें तो पहला, एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। दूसरा, गवर्नमेंट ने ये प्रपोज किया है कि वो एजुकेशन में अपना जीडीपी इन्वेस्टमेंट 1.6% से इंक्रीज करके एटलीस्ट 6% करेंगे। और तीसरा, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पे फोकस किया गया है और ये कहा गया है कि 2035 तक इसे 50% तक इंक्रीज करेंगे। देखिए, ये नंबर्स तभी अचीवेबल है जब एग्जिस्टिंग अप्रोच में एक डायनामिक चेंज इंट्रोड्यूस किया जाए। तो एक होलिस्टिक अप्रोच से इस पॉलिसी को बनाया गया है जिसमें एकेडमिक, वोकेशनल और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को इक्वल फुटिंग दी गई है और पूरा फोकस ये किया गया है कि बच्चों को जिस एरिया में इंटरेस्ट है उस एरिया में वो अपना स्किल डेवलप कर सके और स्कूल कॉलेज से निकलते साथ वो रियल वर्ल्ड के लिए तैयार रहे। तो चलिए जल्दी से इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को एनालाइज करते हैं। तो पहली स्लाइड में हम ये जानेंगे कि स्कूल एजुकेशन के पैटर्न में क्या चेंज किए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है कि 10+2 का जो हमारा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसे 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर में ब्रेक डाउन करना। तो ये जो नया पैटर्न है ये करस्पॉन्ड करता है 3 से 8 साल को, 8 से 11 साल को, 11 से 14 साल को और 14 से 18 साल को। देखिए, इस मूव से प्ले स्कूल्स वाला जो पीरियड है इसे भी फॉर्मल एजुकेशन माना जाएगा। ऐसा करने से 3 से 6 साल के बच्चे भी स्कूल करिकुलम में शामिल होंगे जैसा कि ग्लोबली किया जाता है, क्योंकि इस ग्रुप के बच्चों का मेंटल फैकल्टीज का डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद 6 स्टैंडर्ड से बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी। ये प्रैक्टिस चाइना में बहुत टाइम से की जा रही थी और अब आप उनके डेवलपमेंट के लेवल को देख ही सकते हैं। इसके साथ ही 6 स्टैंडर्ड तक मदर टंग में सीखने का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। अर्ली फेज ऑफ एजुकेशन में लोकल लैंग्वेज अडॉप्ट करने के लिए यूरोप का एग्जाम्पल दिया गया है, जहाँ मदर टंग के कारण बच्चों को चीजें समझने में एक एडवांटेज मिलता है। और बहुत अच्छी बात यह है कि 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनाई जाएगी जिसमें बच्चों के प्रैक्टिकल, एकेडमिक, करिकुलर, को करिकुलर सबको इक्वल फुटिंग दी जाएगी। असंभव किंतु सत्य। अब ये देखते हैं कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन में क्या चेंजेस किए गए हैं। तो इस एरिया में एजुकेशन पॉलिसी ने मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाई है। होलिस्टिक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होंगे जिसमें फ्लेक्सिबल करिकुलम होगा, वोकेशनल सब्जेक्ट्स होंगे और इंटरडिसिप्लिनरी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स भी अलाउड होंगे। इसका मतलब ये कि साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटी स्ट्रीम्स का जो स्ट्रिक्ट डिवीजन हुआ करता था वो अब नहीं होगा। हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स खुद अपने कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स बना पाएंगे। लैंग्वेज में क्या चेंजेस लाए गए हैं कि संस्कृत को हर लेवल ऑफ एजुकेशन में ऑफर किया जाएगा। अदर क्लासिकल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर को भी एज ऑप्शन अवेलेबल रखेंगे। और उन स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़े क्रिएटिव टाइप के होते हैं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना चाहते हैं, उनके लिए लाया गया है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, जिसे यूज करके बच्चे 1 साल का सबैटिकल ले पाएंगे और वापस आने पर जहां से छोड़ा था वहीं से फिर से अपना कोर्स कंटिन्यू कर सकेंगे। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को फ्लेक्सिबल बनाया गया है, मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री ऑप्शंस के साथ। और इसी के साथ एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया है। मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए आईआईटीज एंड आईआईएम्स के लेवल पर मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज मेरू बनाए जाएंगे। और हायर एजुकेशन में रिसर्च कल्चर को फॉस्टर करने के लिए द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को एज एपिक्स बॉडी सेटअप करेंगे। इसी के साथ ही हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI इसे हायर एजुकेशन के लिए एक डेडिकेटेड और सोल बॉडी जैसे सेटअप किया जाएगा। बस इसमें मेडिकल और लीगल एजुकेशन को एक्सक्लूड किया गया है। अब ये देखते हैं कि टीचर्स के लिए क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं। तो इतने सारे चेंजेस के चलते टीचर्स एजुकेशन के फ्रेमवर्क में भी चेंजेस रिक्वायर्ड थे। तो NCERT से कंसल्ट करके एक न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE 2021 बनाई जाएगी और 2030 तक टीचिंग के लिए मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन रहेगी 4 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री की। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पूरा ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज करना, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन अचीव करना, जिससे हर बच्चे के पास स्कूल से निकलते साथ कुछ स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल स्किल्स अवेलेबल हो। बोर्ड एग्जाम के स्ट्रक्चर में भी चेंजेस लाए जाएंगे जो स्टूडेंट्स के कोर को, एप्लीकेशन स्किल्स को और कितनी नॉलेज अटेन की गई है इसे टेस्ट करेंगे। इसके साथ ही गवर्नमेंट और प्राइवेट एजुकेशन में जितने भी गैप्स हैं उन्हें कम किया जाएगा। तो ये थी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। आपको ये पॉलिसी कैसी लगी? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे और रीसेंट अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर या मेरे ब्लॉग्स को फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। Look at this image. What do you see? A beautiful woman, right? Now let me rotate it in its right position.
नमस्कार दोस्तों, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं। इंडियन सिस्टम को जर्मन सिस्टम से कंपेयर करते हुए, सिंगापुर के सिस्टम से कंपेयर करते हुए, इंडियन सिस्टम की कमियां बताते हुए। लेकिन इन सारे वीडियोस में जो मेरा मेन क्रिटिसिज्म रहा है इंडियन एजुकेशन सिस्टम को लेकर कि क्यों हमारा सिस्टम इतना खराब है, क्या हम इसमें बदलाव ला सकते हैं, क्या हम इन डेवलप्ड कंट्रीज से सीख सकते हैं, ये मेन पॉइंट्स मैं बार बार दोहराते रहा हूं इन सारे वीडियोस में। आज दोस्तों मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों को बताते हुए कि हमारी सरकार जो नई एजुकेशन की पॉलिसी लेकर आई है, इन्होंने अपनी नई पॉलिसी में ऑलमोस्ट सारे मेजर क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स को एड्रेस कर लिया है और ये एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाए हैं हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। पॉजिटिव सेंस में मैं कह रहा हूं, बहुत ही अच्छी स्टेप लिए इन्होंने। आइए जानते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म मेरा यह था कि हमारा सिस्टम क्लास 10th के बाद स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरीज में फिट करने की कोशिश करता है, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज। और ये बड़ा प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि अगर आपने एक स्ट्रीम ले ली तो आप दूसरी स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ सकते। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स को वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट होता है। जैसे कि मैं खुद, जब मैंने 11th 12th में था तो मैंने साइंस स्ट्रीम चूज करी थी, लेकिन मेरा इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंस में भी था, इकोनॉमिक्स में भी था, लेकिन मैं मजबूर था। साइंस स्ट्रीम लेकर मैं ये इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ ही नहीं सकता था, क्या करता मैं। लेकिन अब सरकार ने इस चीज को बदल दिया दोस्तों। अब स्टूडेंट्स के पास और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है अपने सब्जेक्ट्स खुद चूज करने की। यानी आज अब इस पॉलिसी के इंप्लीमेंट होने के बाद एक स्टूडेंट फिजिक्स के साथ पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकता है, केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, साइंस के सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकता है, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकता है, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकता है। बहुत ही बढ़िया चीज करी है और मैं तो जेलस फील करता हूं कि हम 90s के किड्स मजबूर थे ये सब चूज करने में। अब स्टूडेंट्स के पास इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आएगी चूज करने की। दूसरा बड़ा चेंज जो सरकार लाई है, इन्होंने हमारे एग्जिस्टिंग 10+2 के एकेडमिक स्ट्रक्चर को बदल के अब 5+3+3+4 सिस्टम में बदल दिया है। अब ये ज्यादा सिमिलर हो गया है वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज के एजुकेशन सिस्टम के कंपैरिजन में। 10+2 सिस्टम में एजुकेशन शुरू होती थी 6 साल की एज से, इस नए सिस्टम में अब 3 साल की एज से एजुकेशन शुरू होगी और एज 3 से लेकर एज 6 तक प्री स्कूल होगा। उसके बाद 2 साल के लिए क्लास 1 और 2 होगी। उसके बाद 3 साल की प्रेपरेटरी स्टेज होगी जिसमें फोकस किया जाएगा प्लेइंग, डिस्कवरी और एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम लर्निंग पे। उसके बाद क्लास 6 टू क्लास 8 जो होगी उसे मिडिल स्टेज कहा जाएगा, जिसपे फोकस किया जाएगा एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे, साइंसेज, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज। और उसके बाद सेकेंडरी स्टेज आएगी क्लास 9 टू 12 की, जिसमें फोकस किया जाएगा मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी पे, फ्लेक्सिबिलिटी और ज्यादा चॉइसेस दी जाएंगी स्टूडेंट्स को। सेलिंग की कोई जॉब हो गई या फिर जो है एक तरीके से सुपरमार्केट में काम करना या फिर ड्राइविंग का काम करना, प्लम्बिंग, कारपेंट्री, तो गार्डनिंग, जो कुछ भी इस टाइप की जो जॉब्स हैं जो प्रॉपर मतलब इंजीनियरिंग साइड में या फिर ह्यूमैनिटीज या फिर वही मतलब यूनिवर्सिटी साइड में नहीं आती, जो कुछ भी एक्स्ट्रा साइड में दिखता है उनकी मतलब काफी हद तक मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग ही की जाती है। तो एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि इंडिया में हम इन सारी जॉब्स को काफी लो लेवल पे देखते हैं। हम उन्हें ऐसा देखते हैं कि वो निचले लोग हैं जो ये सारी टाइप की जॉब्स करते हैं और हमारे पेरेंट्स मजाक उड़ाते हैं कि अगर तू पढ़े लिखेगा नहीं तो क्या ये कारपेंटरी करेगा, कारपेंटर बनेगा, प्लम्बर बनेगा। लेकिन फर्क ये है कि जर्मनी में उतनी ही रिस्पेक्ट मिलती है इन जॉब्स को। मैंने बार बार बताया था आपको इन पिछले वीडियोस में कि कैसे ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में वोकेशनल ट्रेनिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये जो जॉब्स हैं जैसे कि वेल्डिंग, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंट्री, प्लम्बिंग, इन सारी जॉब्स को उसी लेवल पर देखा जाता है जैसे बाकी और स्किल्ड जॉब्स को देखा जाता है। लेकिन हमारे देश में, इंडिया में, इन जॉब्स को एक निचले लेवल पर देखा जाता है, जो कि मैंने बोला था एक ऐसा माइंडसेट है जो हमें बदलना पड़ेगा। और सरकार ने इस माइंडसेट को बदलने के लिए कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल चेंजेस इंप्लीमेंट किए हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। जैसे कि क्लास 6 से ही इंटर्नशिप्स कराई जाएंगी स्टूडेंट्स को वोकेशनल ट्रेनिंग जॉब्स की। इन्हीं जॉब्स का एक्सपीरियंस दिलाया जाएगा स्टूडेंट्स को। 10 दिन का करीब बैगलेस पीरियड होगा जहां पर बच्चे बैग लेकर स्कूल नहीं जाएंगे बल्कि इन जॉब्स को एक्सपीरियंस करेंगे, कारपेंट्री, गार्डनिंग, वेल्डिंग जैसी जॉब्स। Hello, I can remember a book of 200 pages in just 7 days along with और बाद में भी वोकेशनल ट्रेनिंग पर फोकस किया जाएगा स्कूलिंग में। ये बहुत ही क्रिटिकल चीज है दोस्तों, जिसके बिना मुझे लगता है हम एक डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकते जब तक ये चेंजेस इंप्लीमेंट नहीं किए जाते। फॉर्चुनेटली सरकार ने यहां पर एक सही दिशा में एक्शन लिया है। ऊपर से क्लास 6 से ही बच्चों को कोडिंग भी सिखाई जाएगी और क्लास 11 12 में बोर्ड एग्जाम्स की इंपॉर्टेंस को कम किया जाएगा। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव पॉलिसी चेंज, जो रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स को साल के एंड में मिलते हैं, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है। अभी तक क्या होता है कि टीचर्स असेसमेंट करके बताती हैं कि टीचर्स के हिसाब से एक स्टूडेंट ने कैसी परफॉर्मेंस करी है साल भर में। अब ना सिर्फ टीचर्स असेसमेंट करेंगी बल्कि स्टूडेंट्स अपने आप को खुद सेल्फ इवैल्यूएट करके बताएंगे कि स्टूडेंट्स की खुद के पर्सपेक्टिव में उन्हें कैसा लगता है, उन्होंने साल भर में कैसी परफॉर्मेंस करी है। ना सिर्फ सेल्फ इवैल्यूएशन बल्कि स्टूडेंट्स के बाकी क्लासमेट्स भी इवैल्यूएट करके बताएंगे कि बाकी क्लासमेट्स के पर्सपेक्टिव से एक स्टूडेंट ने कैसी परफॉर्मेंस करी है। ये बहुत यूजफुल स्टेप है दोस्तों, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आप खुद से अपने आप को इवैल्यूएट करो, खुद से सोचो कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्रिटिकली एनालाइज करो खुद के डिसीजंस को। और वैसे भी आने वाले लाइफ में, मतलब स्कूल में तो टीचर्स आपको बताती हैं कि आप कैसा कर रहे हो, पेरेंट्स आपको बताते हैं आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन जब आपका स्कूल खत्म हो जाता है, कॉलेज खत्म हो जाता है, उसके बाद की लाइफ में कोई आपको बताने वाला नहीं होता कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। आपको खुद ही से ही इवैल्यूएट करना पड़ता है कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो लाइफ में और क्या करना चाहते हो आप आगे लाइफ में। इसलिए दोस्तों ये जो थिंकिंग है ये पहले से ही इंपार्ट करी जाए स्टूडेंट्स में कि अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करो और बाकी पर्सपेक्टिव्स को देखो कि बाकी लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, उनके हिसाब से आपकी इवैल्यूएशन कैसी है। बहुत यूजफुल है।
एक और बहुत बड़ा चेंज, बार बार मैं अपने वीडियोस में कहते आया हूं कि सरकार को और पैसे खर्च करने चाहिए एजुकेशन पे, और पैसे खर्च करने चाहिए। अब मानो सरकार ने फाइनली सुन ली बात। सरकार ने डिसाइड किया है दोस्तों कि एटलीस्ट 6% ऑफ जीडीपी अब एजुकेशन पे स्पेंड किया जाएगा। आज के दिन ये 3% के अराउंड चल रहा है, जो कि बहुत कम है। और ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज से भी अगर आप कंपेयर करो तो इंडिया काफी कम पैसे खर्च करता है एजुकेशन पे एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो 6% बहुत अच्छा टारगेट है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी सरकार इस चीज को अचीव कर पाती है। लेकिन ऑब्वियसली एज अ फर्स्ट स्टेप इस 6% को टारगेट बनाना बहुत अच्छी चीज है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में रट्टा मारने की एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि ज्यादातर एग्जाम्स इस तरह से डिजाइन है कि हमें मेमोराइज करने की जरूरत पड़ती है चीजों को, और फिर जो भी हमने सीखा है हम कुछ महीनों बाद भूल जाते हैं क्योंकि हमने बस रट्टा मार के एग्जाम्स दिए हैं यहाँ पर। तो सरकार ने ये भी कहा है कि वो इस चीज को भी बदलने की कोशिश करेगी। जो एग्जाम्स होंगे वो ऐसे डिजाइन होंगे जिनमें ज्यादा मेमोराइजेशन की जरूरत ना पड़े, ज्यादा रोट लर्निंग की जरूरत ना पड़े। लेकिन एक्जैक्टली कैसे ये अचीव किया जाएगा इस पर ज्यादा कुछ बताया नहीं गया, तो देखते हैं। होपफुल हूं मैं कि इस पे भी अच्छे चेंजेस इंप्लीमेंट किए जाएंगे यहाँ पर। क्लास 12 के बाद की एजुकेशन की बात करें तो मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रोग्राम लाया गया है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आपने अपनी कोई डिग्री चालू करी और मान लो बीटेक की डिग्री आपने शुरू करी और 1 साल बाद आप रियलाइज करते हो कि मुझे पसंद नहीं आ रहा, मुझे और नहीं पढ़ना है, तो आप बीच में से ही ड्रॉप आउट कर सकते हो और 1 साल तक जितनी आपने पढ़ाई करी है, जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं आपने, उनके क्रेडिट्स आप ले सकते हो और दूसरी डिग्री में ट्रांसफर कर सकते हो। बहुत यूजफुल है। ये एक ऐसी चीज है जो ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो बहुत अच्छी चीज है कि अब इंडिया में भी ऑप्शन अवेलेबल होगा। इनफैक्ट ये ऑप्शन तो ये बना दिया गया है कि मान लो 4 साल की डिग्री है, आप 1 साल के बाद ड्रॉप आउट करते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल के बाद ड्रॉप आउट करते हो तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, तीसरे साल के बाद आपको बैचलर्स डिग्री मिलेगी और चौथे साल के बाद बैचलर्स रिसर्च डिग्री मिलेगी। एमए और एमएससी के जो कोर्सेज होते हैं वो 1 ही साल के होंगे अगर आपने पहले बैचलर्स में 4 साल की डिग्री करी है, और 2 साल के होंगे अगर आपने 3 साल की डिग्री करी है। ये फिर से कंसिस्टेंट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से। साथ ही साथ टॉप 100 फॉरेन कॉलेजेस को परमिशन दे दी गई है कि वो अब इंडिया में भी अपने कैंपसेस सेटअप कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि एक ऐसी पॉलिसी है जो कांग्रेस लाना चाह रही थी अपने टाइम में, लेकिन बीजेपी ने तभी से अपोज किया था। बीजेपी खुद ही ला रही है इसे। वोकेशनल एजुकेशन पर अपना फोकस जाहिर करते हुए सरकार ने कहा है कि अगले 10 सालों में एक फेज्ड तरीके से सारे स्कूल्स और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इन्हें इंटीग्रेट किया जाएगा। एम किया जा रहा है कि 2025 तक 50% जो लर्नर्स होंगे स्कूल और हायर एजुकेशन सिस्टम में, उन्हें एक्सपोजर मिलेगा वोकेशनल एजुकेशन का। टीचर्स के लिए कहा गया है कि एक कॉमन नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड बनाया जाएगा सारे टीचर्स के लिए 2022 तक, और बाय 2030 जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी एक टीचर बनने के लिए, वो होगी एक 4 साल की इंटीग्रेटेड बीईडी डिग्री। तो ये तो थे दोस्तों पॉजिटिव पॉइंट्स मेरी राय में, जो अच्छी चीजें करी सरकार ने इस नई पॉलिसी में। अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की या कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स की, जिन्हें लोग क्रिटिसाइज करने लग रहे हैं। इस नई पॉलिसी को लेकर सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म किसी पॉइंट पर हुआ है तो वो है लैंग्वेज के पॉइंट पर। इस पॉलिसी में लिखा गया है कि wherever possible the medium of instruction till 5th grade and preferably till 8th grade and beyond will be the home language, local language और the regional language। यानी 5th क्लास तक बच्चे की पढ़ाई होम लैंग्वेज में होनी चाहिए, मदर लैंग्वेज में होनी चाहिए या रीजनल लैंग्वेज में होनी चाहिए। हालांकि ये कहीं नहीं लिखा गया कि ये कंपलसरी है करना, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने इस चीज को क्रिटिसाइज किया वो कहते हैं कि बेसिकली स्कूल्स को फोर्स करेगा कि वो इंग्लिश में ना पढ़ाएं बल्कि रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ाएं, जो कि ज्यादातर लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर मान लो आप केरला में रहते हो और 4th क्लास तक आपके बच्चे ने केरला में पढ़ाई करी, उसके बाद वो आप महाराष्ट्र में शिफ्ट हो जाते हो, तो महाराष्ट्र में मराठी में ज्यादातर स्कूल्स पढ़ाएंगे और वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा बच्चा। तो जो मूवमेंट है लोगों की एक से दूसरी स्टेट में, वो काफी हद तक कम हो जाएगी इससे, और इफेक्ट पड़ सकता है इससे बुरा। पॉलिसी में ये भी लिखा गया है कि किसी भी लैंग्वेज को फोर्स नहीं किया जाएगा। हालांकि ये भी कहा गया है कि संस्कृत और बाकी जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उन्हें ट्राई किया जाएगा कि स्कूल के हर लेवल पे एज एन ऑप्शन अवेलेबल हो, और क्लास 9 के बाद से फॉरेन लैंग्वेजेस के भी ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे अभी भी मिलते आ रहे हैं। मेरी राय में इंग्लिश को प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के दिन दुनिया भर में इंग्लिश एक तरह से ग्लोबल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बन चुकी है। आप किसी भी कंट्री से आते हो, मेरा मानना है कि इंग्लिश सीखनी बहुत जरूरी है। अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे कुछ भी करना है, कहीं पे compete करना है, पढ़ाई करनी है, कुछ भी करना है, हर देश में इंग्लिश सीखनी जरूरी बनती जा रही है। और ये एक तरह से इंडिया का एडवांटेज पॉइंट भी है चाइना के कंपैरिजन में और बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के कंपैरिजन में, क्योंकि वहां पर लोग इतना इंग्लिश नहीं सीख पाते। इंडिया में लोग इंग्लिश बोलते हैं, इसलिए यूएस, यूरोप और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में जाकर कंपीट कर पाते हैं। दूसरा, कई स्टूडेंट्स और टीचर बॉडीज ने इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया ये कहते हुए कि ये एंटी डेमोक्रेटिक है। कई पार्टीज ने भी इसे क्रिटिसाइज किया है, जैसे कि सीपीआईएम से सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिला है। वो कहते हैं कि स्टेट्स की नहीं पूछी गई इस पॉलिसी को लाने से पहले। नॉर्मली क्योंकि एजुकेशन एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है जो स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में भी आता है और सेंटर की लिस्ट में भी आता है, तो स्टेट से और कंसल्टेशन करनी चाहिए थी इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने से पहले। बाकी ये भी कहा गया है कि ये पॉलिसी सेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करती है, क्योंकि इस पॉलिसी में एक ऐसा पॉइंट है कि न्यू टीचर्स ट्रेनिंग बोर्ड विल बी सेट अप फॉर ऑल काइंड्स ऑफ टीचर्स इन द कंट्री एंड नो स्टेट कैन चेंज दैट। तो स्टेट से पावर छीन ली गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दे दी गई है, और पावर को और सेंट्रलाइज कर दिया गया है कि ये जो डिसीजन मेकिंग होगी एजुकेशन को लेकर वो सेंटर की तरफ से आएगी। और फाइनली कुछ क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स ये थे कि पॉलिसी बेसिकली बहुत थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकली चीजों को बदलती है, लेकिन उन्हें रियल लाइफ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना बहुत ही लंबा प्रोसेस होगा, बहुत ही मुश्किल प्रोसेस होगा। क्योंकि आज के दिन कितने ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर बच्चे 5th क्लास में पढ़ते हैं, टीचर्स ही
कितनी कमी है गवर्नमेंट स्कूल्स में, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अवेलेबल है स्कूल्स में, उनकी पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाती है, बच्चे पहले ही ड्रॉप आउट कर देते हैं। काफी सारे गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर इतनी कम टीचर्स अवेलेबल हैं, तो कहां से उन्हें आप वोकेशनल ट्रेनिंग कराओगे, इतने वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ने का उन्हें मौका मिलेगा, ये सब मिल ही नहीं पाएगा। ये भी एक पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म है, क्योंकि ये सारे चेंजेस हम ऊपर से कह देंगे कि ला रहे हैं, लेकिन रियलिटी में इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होगा। मेरी राय में लेजिट पॉइंट है क्रिटिसिज्म का, और ये आने वाला टाइम ही बताएगा कि कितना इंप्लीमेंटेशन किया जाता है इन पॉलिसीज का और रियलिटी में ग्राउंड लेवल पे क्या चेंज आता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर, या YouTube पर मेंबर बनकर ज्वाइन बटन क्लिक करके, ताकि ऐसे ही और वीडियोस मैं आपके लिए फ्यूचर में बनाते रहूं। और बाकी इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कुबेरा ऐप का। कुबेरा